हमें वो कौन सी 3 ऐसे स्टेटमेंट्स, वो 3 ऐसे शब्द या सेंटेंसेस हमारे लाइफस्टाइल में ऐड कर लेने चाहिए? सेरेना विलियम्स के जो फादर थे वो हमेशा अपनी लड़कियों को क्या कहते थे? यू आर द चैंपियन, यू आर द चैंपियन, दे बिकेम द चैंपियन। They became the champion. इंस्टेड ऑफ सेइंग तुम तो खेल नहीं पाती हो, तुम बार बार हार रही हो, बार बार ये कर रही हो, दे ऑल्सो फेल्ड मेनी टाइम्स. So they said कि no, you are a champion, you are a champion. So start giving, again it will go into their subconscious mind and they'll say I am champion. When you start say I am champion, you become a champion. तो पहले तो आपको ये बोलना है ना. तो एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को ये महसूस हो कि my parents are there for my support no matter I'll lose what or win. mistake I Yeah, do. yeah. So I'm with you. You are a champion, I am with you. आई एम विद यू, यू आर अ चैम्पियन. और जो भी आप चाहते हैं कि वो गोल अचीव करे, आई लव यू. Hello everyone, we are back with another fresh episode at Beyond Talks. And our latest series, Emotional Detox, is excited to welcome our next guest today. She is the right amalgamation of energy and experience. Yes, 40 years of dedicated experience in the space of psychology. Somebody is here who has taught thousands of students, wrote multiple books, and impacted millions of lives with her work. We welcome you to the show, our guest, Professor Dr. Manju Agarwal. Thank you so much, Man, for inviting me here. I'm truly honored. And this is another chance for me to speak to a large audience and learn from you and give something, whatever I can. Beautiful. I guess that's something she has already started teaching us, that be ready to learn every time, every day, and every Yes, place. I'm myself a learner and will remain a Fantastic. learner throughout. जहाँ बात लर्निंग की हो रही है मैम, आई एनकाउंटर्ड अ वंडरफुल बुक जो पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं बात करती है, समझाने के उद्देश्य से नहीं बात करती है, सब कुछ अपने आप एक ऑटोमेशन मोड में होता चला जाता है. And fortunately, you are the author of. Oh my God. I would want that the preface of our episode Yeah. should start with the preface of this beautiful book. So, with Okay. my humble request, if at all you can read Okay. that Okay. preface for my audience today. Thank you so much. So यहाँ पर हमने बुक का अनवीलिंग भी करा लिया है आपसे हाँ, अनऑफिशियल. लग रहा है लग रहा है सर. जी. So the preface starts with a single word has the power to influence the expression of genes. I think nobody can think about it. So true. That it has. So the hypnotherapy, because we are using words there also, that regulate physical and emotional stress. Word is world. Word is world. I guess this is imprinted already in our head and heart. Yes. Word is world. Word is power, because it is the word which is going to tell you. जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं उसी तरह की एनर्जी, उसी तरह के इमोशंस, उसी तरह के थॉट्स हम क्रिएट करते हैं और उसी तरह की फिजियोलॉजी भी हम क्रिएट करते हैं. हमारे सेल्स उसी तरह रिएक्ट करते हैं. न्यूरोट्रांसमिटर्स, योर सीक्रेशंस ऑफ हार्मोन्स, एवरीथिंग रिएक्ट्स अकॉर्डिंगली. हम अभी आपको बोलेंगे मन आप कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने स्मार्ट लग रहे हैं, तो आपकी फिजियोलॉजी भी बदली, आपके चेहरे पे स्माइल भी आई और आपके सीक्रेशंस, हार्मोन्स, ट्रांसमिटर्स, न्यूरोट्रांसमिटर्स सब बदल गया. जी. दैट्स व्हाई वर्ड इज वर्ल्ड. Word is power, word is thought, and word is feeling. Words shape our reality. They are not just a means of communication, but also a powerful tool that influences our thoughts, feelings, actions, and ultimately personality. So, as you think, as you speak, so you think, so you feel, so you act, and altogether is your personal reality, that is personality. तो हमारे शब्दों से हमारी पर्सनालिटी Yes, बनती है. I guess yes. that's what this preface Exactly, says. exactly. Because शब्द ही थॉट्स हैं, शब्द ही फीलिंग्स हैं और शब्द ही एक्शंस हैं. आप कुछ भी काम करने जाते हैं उसके पहले मन में कितनी बार उसको बोलते हैं. आप कुछ भी एक्सप्रेस करते हैं उसके पहले मन में कितने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. आज से अगर आप ये नोटिस करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा
Word is world. क्या बात है. We'll You go want me back to read to more? we Or will it's okay? definitely go back to the book again. But जहाँ आपने आज इतनी पावरफुल बात कही है कि हमारे शब्दों से, हमारी वर्ड से हमारी पर्सनैलिटी शेप होती है. वी हैव अ लॉट ऑफ पेरेंट जो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बहुत सारे पॉजिटिव एंड बहुत सारे नॉट सो पॉजिटिव वर्ड्स बच्चों की वोकैबुलरी में डालते चले जाते हैं. उन पेरेंट्स के लिए एक थॉटफुल मैसेज प्रोफेसर अग्रवाल का यहाँ पर क्या होने वाला है? पेरेंट्स, आप बताइए किस लैंग्वेज में बात करते हैं बच्चों से? हैव यू नोटिस्ड इट? मस्ट हैव. यू आर सो प्रोफाउंड. जब हम बात करते हैं बच्चों से, मान लीजिए हमें उन्हें खाना खिलाना है, तो कैसे बात करेंगे? खाना खा लो. इंस्ट्रक्शंस देने वाले. इंस्ट्रक्शंस. राइट. डू दिस, डोंट डू दिस. डोंट में हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं. कमांड वाले मोड में कमांड वाला मोड एंड नो वाला मोड, नॉट. तो अगर मान लीजिए हमें उसको खाना खिलाना है, हम कहेंगे खाना खा लो. एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स. young parents are having And this young one mothers. sole purpose. सोल पर्पस, लाइफ का पर्पस है कि वो खाना खा ले टाइम से. So true. खाना खा लो, खाना रखा हुआ है. फिर उसके बाद जब हमारे गेस्ट आते हैं हमारे सामने, या हम फ्रेंड्स रिलेटिव्स होते हैं, ये तो खाना ही नहीं खाता. तो जब हम ये बार बार बोलते हैं ये खाना नहीं खाता, ये खाना नहीं खाता, इसको तो खाने में इंटरेस्ट ही नहीं है. सो माई सबकॉन्शियस माइंड इज़ लिसनिंग टू इट. तो हम उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं. अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहना शुरू करता है तुम्हें खाना नहीं अच्छा लगता, तुम खाना नहीं खाते हो. एंड देन योर कॉन्शियस माइंड विल स्टार्ट ओबेइंग इट. तो एक तो ये होता है कि जब हम जो हम चाहते हैं वो नहीं बोलते, बल्कि जो हम नहीं चाहते हैं वो बोल रहे हैं. ये तो खाना नहीं खाता, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि खाना खाता है तो कहीं इसको नज़र ना लग जाए. और हमें हमेशा महसूस भी होता है कि वो खाना नहीं खाता. तो जो हम चाहते हैं वो हम नहीं बोलते हैं, और जो हम नहीं नहीं चाहते चाहते हैं वो बोलते वो हैं. हम बोलते हैं, और फिर वो और होता है तो हम फिर दुखी होते हैं. दुखी होते हैं, और उसकी एनर्जी हमने क्रिएट कर दी. हम्म. आई हैव क्रिएटेड दैट एनर्जी. सो और फिर इंस्ट्रक्शनल मोड की जो हम बात कर रहे थे, खाना खा लो, खाना खा लो. नो बडी, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो 80 साल का बूढ़ा हो, नो वन वॉन्ट्स टू टेक इंस्ट्रक्शंस. सो अगर आप अपनी लैंग्वेज बदल दें और एक हिप्नॉइडल लैंग्वेज यूज़ करें, इनडायरेक्ट सजेस्टिव लैंग्वेज यूज़ करें, लैंग्वेज ऑफ सजेस्टिबिलिटी जो होती है उसको यूज़ करें, तो आपकी बच्चे का आपकी बात सुनने की प्रोबेबिलिटी मेनी टाइम्स बढ़ जाएगी. अगर आप अपनी भाषा बदल लें तो अपने बच्चे का भविष्य बदल सकते हैं. एब्सोल्युटली man, you have used the right sentence. That's So let me give you some example. जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तुम खाना खा लो, यू नीड टू से, सपोज आपके बच्चे का नाम है मोहित. मोहित को तो भूख लग रही है, मोहित वांट्स टू बी हेल्दी, एंड अभी मोहित खाना खाएगा. सो आपने उसके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया कि मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाऊंगा, और मैं हेल्दी बनूंगा. मैं हेल्दी बनूंगा. साथ में आपने ये भी जोड़ दिया. तो अब आपने उसके सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे एक्टिवेट करना शुरू कर दिया. अब मान लीजिए आप टेबल लगा हुआ है, खाना वो खा नहीं रहा है, तब भी शुरू में क्या होगा कि टाइम लगेगा इसको एडजस्ट होने में. नहीं खा रहा है तो आप उससे इंस्टेड से खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तुरंत खाओ, अभी खाओ, इसी समय खाओ. अभी अभी वो 10 मिनट बाद उठेगा, अपना स्क्रीन बंद कर देगा और फिर खाना खा लेगा. अगेन आपने एक सजेशन डाल दिया कि 10 मिनट बाद वो अपना स्क्रीन बंद कर देगा. तो आपने यहाँ 2 चीज़ें एसोसिएट भी कर दी कि 10 मिनट स्क्रीन बंद करना, आपने वर्चुअली उसको डी एडिक्ट भी कर दिया स्क्रीन से थोड़ा. स्मार्ट गोल सेटिंग जिसे हम कहते हैं, स्पेसिफिक मेजरेबल, स्पेसिफिक मेजरेबल, टाइम स्मार्ट, बाउंड. टाइम बाउंड, एक्शनेबल. So true, so true. तो 10 मिनट बाद ये स्क्रीन बंद करके टेबल पे आएगा, खाना खाएगा. सो ये सब इनडायरेक्ट सजेशंस हम उसके माइंड को दिए चले जा रहे हैं, और वो माइंड एक्सेप्ट करता जा रहा है, और ग्रेजुअली वो ये सब करना शुरू कर दे. सो पहले आपको हो सकता है 10 मिनट बाद ना आए, वो इट्स पॉसिबल. पहले आपने कहा अभी आ जाओ, नहीं आया. 10 मिनट बाद भी हो सकता है ना आए, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट किया है ये. सो आपको ओके, आई थिंक 5 मिनट बाद आ जाएगा, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, आई एम ऑल्सो वेटिंग टू हैव डिनर विद यू. सो इनडायरेक्ट लैंग्वेजेस को आप बोलते जाएं तो वो चीज़ें हो जाती हैं. अब मान लीजिए आपका क्लासरूम है, पीछे का दरवाज़ा खुला है, यू हैव 2 ऑप्शंस. मोहिता ज़रा उठ के दरवाज़ा बंद कर दो, और यू के आई थिंक समबडी वुड लाइक टू क्लोज द डोर, एंड इट इज़ वेरी लाइकली कि मोहिता ही उठ के जाके दरवाज़ा
बंद कर दें क्योंकि वो सबसे पीछे बैठी है। तो ऑटोमेटिकली थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग। सो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग इन येस, नो, डू, डोंट, और डोंट में आप बात नहीं करिए क्योंकि नॉट का कोई इमेज नहीं होती है। एक आपने बड़ी अच्छी बात थोड़ी देर पहले कही थी कि यूनिवर्स को नॉट नहीं समझ में नॉट आता समझ में नहीं आता है। यूनिवर्स की लैंग्वेज नॉट नहीं है। यूनिवर्स की लैंग्वेज है डायरेक्ट। आपको यदि कम्युनिकेशन करना है तो यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स योर लैंग्वेज इन इमेजेस, इन वर्ड्स, बट नॉट की चूंकि इमेज नहीं है इसलिए आप भी नहीं समझते। आप बच्चे से कहोगे कि वो नल बंद कर दो, तब तो वो समझ में आएगा। नल खुला मत छोड़ो, तो उसको शायद नहीं समझ में आएगा। या अगर हम आपसे कहें we can start it, I mean we can experiment it right now. आप आंख Yes. बंद करो मन, हाँ. हैं, and just close your eyes हम्म, and please do not think of a pink elephant. हम्म. अब आप मुझे ये बताओ आपने कौन सी कलर का एलिफेंट सोचा? For sure, pink. Sure pink. You have never Yes. seen that in your Correct. life? Correct. Never कोई ever. इमेज नहीं है पिंक Yes. एलिफेंट की, Yes. पर आपने पिंक एलिफेंट सोच दिया Imagine बिकॉज करना शुरू नॉट किया. हमने लगाया था बट नॉट आप नहीं सोच पाए हम्म, और आपने पिंक एलिफेंट सोचा हम्म. जिसकी कोई इमेज नहीं है आपके लाइफ में कभी भी। सो दैट इज व्हाट हैपेंस कि इमेज आपकी बनती है उन वर्ड्स की जिनका एक कंस्ट्रक्टिव इमेज है। क्या बात है। तो हम अपने शब्दों में थोड़ी सकारात्मकता अगर ले आए तो हमारे कनेक्शंस और ज्यादा मीनिंगफुल एंड एंड डू पावरफुल नॉट बन यूज सकते हैं. नेगेटिव वर्ड्स ऑल्सो। हम्म, जैसे स्मोकिंग मत करो, स्मोकिंग मत करो, स्मोकिंग की एक इमेज है, मत की इमेज है नहीं, और करो की इमेज और है. करो की सो यू कैन से कि लेट्स हैव अ वेरी healthy environment where we can breathe very nicely, or we can breathe healthy, we can have healthy air. I think you can use to have healthy air instead of do not smoke and do not create pollution. Beautiful. I think a little alteration in our statements and sentences Yeah, can alter our life in a very, very exactly. better way. The same thing applies with de-addiction of your screen. आजकल वो भी एक बहुत बड़ा I was just coming to that. I guess आप already वो decode कर रहे हो. Man decoded is already on. This is another very big challenge with the parent, child, and I guess the whole society is kind of facing right now. जैसे ही हमें 2 मिनट का समय मिलता है, the first thing comes to our head. Just go grab your device and start scrolling. बिकॉज बहुत डोपामाइन रिलीज करती है ना वो। तो इसको हम कैसे, मतलब आपने जिस तरह से सिंप्लीफाई हमारा पेरेंट का खाना खिलाने वाला प्रॉब्लम कर दिया, अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें, आई एम श्योर पेरेंट वुड स्टार्ट आई वर्शिपिंग. थिंक मुझे लगता है कि यू कैन यूज द सेम प्रिंसिपल फॉर एवरीथिंग क्योंकि पढ़ाई भी है। आई थिंक तीसरा जो 3 चीज़ें जो यंग मदर्स, यंग पेरेंट्स की हैं, और एक और भी है ओबीडियंस वाला, बट खाना, पढ़ना और डी एडिक्शन और बात नहीं सुनते, 4 चीज़ें हैं। तो ये चारों चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो एक ही है, वन फिट फॉर ऑल. वन फिट फॉर ऑल। फॉर एग्जांपल स्टडी नहीं करते हैं, तो स्टडी में हम क्या है, हम खुद को इम्पोज कर रहे हैं। सुबह उठा करो, सुबह अच्छी पढ़ाई होती है, सुबह पढ़ाई करा करो। अभी तुम अभी पढ़ रहे थे, तुरंत तुमने जो है टीवी देखना शुरू कर दिया, दिन भर टीवी देखते रहते हो। वी जनरलाइज ऑल्सो द मोमेंट आई एम सेइंग तुम दिन भर टीवी देखते रहते हो, again my subconscious mind is listening it and I will be more motivated to see the TV the whole day. नो, आपने जैसा कि शुरुआत में बताया, हमारे शब्द ही हमारी फीलिंग्स बनते हैं, हाँ, थॉट्स बनते हैं, हाँ, एक्शन हाँ, बनते हैं, हाँ, और फिर हमारी हाँ, पर्सनालिटी बन जाते हैं. पर्सनालिटी बनते हैं। हम्म. तो अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि वो मोटिवेटेड हो पढ़ने में, तो जस्ट टॉक टू द चाइल्ड, कौन सा टाइम उसको सूट करता है। लेट द चाइल्ड टेक द ओनरशिप ऑफ स्टडीज देन यू टेकिंग द ओनरशिप ऑफ His studies or her हिज और studies. हर स्टडीज। और हम हमेशा ओनरशिप एज पेरेंट लिए रहते हैं। आप ओनरशिप में रहेंगे, आप पेरेंट हो, रहोगे, बट इनडायरेक्टली रहो ना। आप उसको दो कि कब पढ़ना चाहते हो, कौन सा सब्जेक्ट तुमको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, किस में कितना टाइम देना चाहते हो, दिन में तुम कितने घंटे पढ़ना चाहते हो, कितने % नंबर लाना चाहते हो। एंड ये अपने आप बच्चा वो बोलने लगेगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि उसने सुन रखा है कि मेरे पेरेंट्स क्या चाहते हैं। द चिल्ड्रन आर वेरी लॉयल। तो अगर वो बच्चा कहते हैं मैं 3 घंटा पढ़ना चाहता हूँ, देन यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, डू यू थिंक 3 आवर्स आर सफिशिएंट? तुमको लगता है कि 3 घंटे में तुम्हारी ये जो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट कर लोगे? देन लेट द चाइल्ड से कि नहीं नहीं हमको लगता है 4 घंटे पढ़ना चाहिए। बट लेट द चाइल्ड टेक अ डिसीजन विच एक्चुअली यू आर टेकिंग।
So we और should become that facilitator for their फैसिलिटेट, final यस decision यस making in यस spite of यस, imposing the decisions इम्पोजिंग। on the और फिर वो child. 4 घंटा उसी से पूछिए किस समय पढ़ना चाहोगे, सुबह पढ़ना चाहोगे, दोपहर में पढ़ना चाहोगे, लौट के होमवर्क करोगे, शाम को होमवर्क करोगे, खेलने किस समय जाओगे, ये सारा ओनरशिप आप दे रहे हैं उसको, बट आप फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो सारी चीज़ें करे जो उसको पता है भाई मेरे फादर या मदर क्या चाहते हैं, वो उस हिसाब से करेगा। बट फिर अगर उसने कहा है कि हम आधा घंटा पढ़ेंगे और वो आधा घंटे के बाद टीवी देखने आ रहा है, तो प्लीज़ डोंट से कि नहीं अब तुम टीवी दिन भर देख रहे हो। हर समय हम बच्चों के पीछे जो पड़े रहते हैं या हर समय टोकते रहते हैं, हमें लगता है उससे हम बच्चे को एकदम उसका प्रेजेंट एंड भविष्य सब अच्छा कर देंगे, वो इरिटेट हो जाता है, उसकी डिसोबीडियंस बढ़ने लगती है आपके प्रति। तो वो आपको चाहे अब डी एडिक्शन भी है स्क्रीन का, सो फर्स्ट लिसन टू द चाइल्ड, क्या देखता है, किस तरह की चीज़ें देखता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये भी आप इनडायरेक्टली उसको बता सकते हैं। दैन से कि आप देख रहे हैं स्क्रीन, क्या देख रहा है, तुरंत आपने बंद कर दिया, स्क्रीन छीन ली उससे, इससे डिसोबीडियंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. बढ़ जाता है, Hmm. बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो जो मैंने आपको बताया ना कि अच्छा अभी बंद कर देगा स्क्रीन, नहीं बंद किया, अच्छा 5 मिनट बाद तो कर ही देगा। अब Hmm. तो उसका मन कर रहा है स्क्रीन बंद करने का। Hmm. नाउ द चाइल्ड वांट्स टू, मोहित ही चलिए नाम ले लेते हैं हाँ, मोहित या रानी और व्हाटएवर, आई थिंक लेट्स जी टॉक अबाउट जी. गर्ल्स आल्सो तो Ma'am, another interesting area of interest is gender यस equality. यस वेरी मच। तो रानी को आपने कहा कि अब तो ये बंद कर ही देगी, उसको पता है कि ये अच्छा नहीं है। धीरे धीरे सटली आप ये मैसेजेस उसके माइंड में, सबकॉन्शियस में डालते जा रहे हो. सबकॉन्शियस में डालते जाइए। सो दैट इज इनडायरेक्ट सजेस्टेबल हिप्नोइडल लैंग्वेज। पर बहुत बार क्या होता है, एक पेरेंट जो होता है वो भविष्य के भय में जीता है कि अगर आज मैंने अपने बच्चे को इन सब चीज़ों से नहीं रोका, इतनी टाइट कंट्रोलिंग नहीं की, स्ट्रॉन्ग बैरिगेशन हर चीज़ के लिए नहीं लगाया, तो मेरा बच्चा शायद हाथ से निकल जाएगा, बिगड़ जाएगा, उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा. और ये भय किसका है? भविष्य का, नहीं, भविष्य का है, पेरेंट का है। पेरेंट का है. पेरेंट का जी एक्चुअली ये भय पेरेंट का है, जी और ये भय भी वो कहीं से ला रहा है। जी. वो शायद अपनी पेरेंटिंग से ला रहा सराउंडिंग. है, या अभी बहुत कंपटीशन पियर, चारों करेक्ट तरफ करेक्ट देख रहा करेक्ट है, या करेक्ट कहीं करेक्ट से वो करेक्ट. भय ला रहा है, और वो अपना भय अपने बच्चे पे क्यों, जो उसका सबसे प्रिय है, उसके ऊपर निकाल रहा है विदाउट रियलाइजिंग। बिकॉज यू नो आई थिंक वन थिंग विच आई ऑफन से एंड आई वुड लाइक टू रिपीट हियर, कि हम सब इंसिडेंटल पेरेंट्स हैं, इंसिडेंटल स्पाउसेस हैं। आपकी चपरासी के लिए भी एक कोई क्वालिफिकेशन होती है, उसका ओरिएंटेशन होता है, इंटरव्यू होता है कि भाई तुम फिट हो कि नहीं चपरासी बनने के लिए, और किस तरह काम करोगे, उसको थोड़ा बहुत ट्रेन भी किया जाता है। और बाकी अगर आप कंपनीज में कहीं भी आप जाते हैं काम करने, एक तो प्रॉपर कितनी लंबी स्क्रीनिंग एक प्रोसेस. स्क्रीनिंग के अलावा कितना लंबा ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग में आप रहते हैं, 6 महीने, साल भर। और पेरेंटिंग एंड बीइंग अ स्पाउस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ योर लाइफ। These उसके are लिए life changing moments for नहीं, और वो आपकी individuals. पूरी जिंदगी वही काम करता है। आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे आप धन कमा लो, चाहे आप अच्छी जॉब में आ जाओ, कुछ भी कर लो, बट अल्टीमेट इज योर family and your relationship with your spouse, your relationship with your child, that is going to decide your happiness, that is going to decide your health, Absolutely. that is going to decide the way you are blooming and the way you are actually, आप पूरी lineage को उसमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप डिसफंक्शनल फैमिली है, तो आपके यू आर वेरी लाइकली टू क्रिएट अनदर डिसफंक्शनल फैमिली थ्रू योर चाइल्ड, and your child is going to create another dysfunctional family The chain until unless you reaction would break be that there. chain. Yeah, Yes. yeah. तो स्पाउस बनने के पहले और पेरेंट बनने के पहले जो बहुत सारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, वो मिसिंग है हमारे वर्ल्ड में। क्या बात है. तो किस तरह की तैयारियों, शायद वो कौन से इंस्टीट्यूट है जहाँ जाकर है नहीं ना अच्छे, अभी ग्रूमिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं। आपको वो एयर हॉस्टेस बनना है या कहीं भी किसी अच्छी जॉब में जाना है, तो ग्रूमिंग। But what about psychological grooming? What about communication grooming? What about spiritual grooming? What about understanding grooming? पर इसकी बहुत बार ग्रूमिंग का क्या? जैसे कम्युनिकेशन वर्ड आता है, हम भारतीयों का दिल दिमाग सोचता है कि अगर किसी को अंग्रेजी बोलना सीखना है मतलब उसे कम्युनिकेशन डेवलप करना है. हाँ,
और आप जो वर्ड्स की पावर को समझते हैं, सेल्फ टॉक की पावर को समझते हैं, टॉक की पावर को समझते हैं, और बियॉन्ड टॉक पे आज आप यहाँ पर डेफिनेटली हैं। तो बहुत बार हम कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये मान लेते हैं कि अच्छी अंग्रेजी या किसी भी एक भाषा विशेष में हमारा विशेष अधिकार हो। ये इटसेल्फ एक फॉल्टी आइडिया है। मैं अगर आपको अपना एग्जांपल दूँ, शुरू में मैं जब पीएचडी कर रही थी और पीएचडी के बाद भी मुझे ऐसे लगता था कि मेरा इंग्लिश पे ज़्यादा कमांड नहीं है, मैं बहुत बढ़िया नहीं लिख पाती हूँ। एंड मेरे जो गाइड भी थे वो भी बार-बार कहते थे, "भई तुम इम्प्रूव करो अपनी, राइटिंग इम्प्रूव करो, इंग्लिश इम्प्रूव करो।" बट आई गॉट अनदर मेंटर इन माय लाइफ, डॉक्टर दलाल। ही टोल्ड मी, "यू हैव ब्यूटीफुल आइडियाज़ एंड तुम इतना बढ़िया सोच पाती हो। जो कम्युनिकेशन है, जो लैंग्वेज है, वो तो एक्सप्रेशन का आइडियाज़, अगर आइडियाज़ ही नहीं होंगे तो एक्सप्रेस क्या करोगी?" राइट? और उसके बाद से मेरी ऑटोमैटिकली मेरी लैंग्वेज और मेरी इंग्लिश सब इम्प्रूव करती है। पर हमारे अभी करंट स्टेटस में आइडियाज को डेवलप करने के लिए ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग कम अवेलेबल है, और उसके एक्सप्रेशन को डेवलप करने के लिए एफर्ट्स ज़्यादा हैं। ज़्यादा हैं। बल्कि अगर अगर आपके पास आइडियाज़ नहीं हैं, तो आप कितना भी लैंग्वेज सीख लीजिए, एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ children or students who are educated in fancy institutes are failing in jobs, in careers, in personal lives, because communication doesn't mean a particular English or Hindi or anything. आपके आइडियाज होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लैंग्वेज आ ही जाएगी। I have been a part of a couple of very high profile pageant competitions in our country. I have been a part of couple of I have been a panelist for a couple of recruitment drives for big brands in the country. And I guess this is one of the very, very important lacuna which I see on a constant basis, कि ideas ही missing है, आइडियाज ही मिसिंग है। और हमने टेंसेस एंड वोकैबुलरी को बिल्टअप करने के लिए अपनी पूरी जाने जीवन की कितने शक्ति लगा कितनी दी। इंस्टीट्यूट्स खुले हैं इस एज पेरेंट बनाने के लिए, एक स्पाउस बनाने जिम्मेदार के लिए बनने। कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, और कहाँ लोग खर्च करते हैं। आप 1 लाख रुपए का लहंगा बना लेते हैं, 1 लाख क्या, आप तो कई लाख के बनने लगे। 2, 3, 4 लाख आप डेकोरेशन में खर्च कर देते हैं, 10 लाख आप खाने पे खर्च कर देते हैं। हैव यू स्पेंट एनी मनी ऑन प्रिपेयरिंग योरसेल्फ एज अ स्पाउस? ड्रिंक की बोतलें फिक रही हैं, मुजरे हो रहे हैं, डांस, ड्रामा, ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, बट व्हाट अबाउट द रियल थिंग? उस रियल थिंग में अगर हम किसी से कहें कि 25,000 रुपए दे दो, जिससे कि हम तुमको ये बता सकें व्हाट आर दी चैलेंजिंग सिचुएशंस एंड हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, हाउ टू लर्न एक्सेप्टेंस, बिकॉज एक्सेप्टेंस इज द कोर वैल्यू फॉर एनी रिलेशनशिप टू वर्क। एक्सेप्टेंस, असर्टिवनेस, अंडरस्टैंडिंग। पर आज आज जो रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम आती है, हम थोड़ा सा शायद टॉपिक से उधर जा रहे हैं, पर आप इतना इंटरेस्टिंग तरीके से बता रहे हो तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। सो एक्सेप्टेंस को लेकर एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, मैं क्यों आपको एक्सेप्ट करूं, आप क्यों नहीं मैं जैसा हूं मुझे वैसा एक्सेप्ट कर लेते हो। एवरीवन शुड डू दैट। आप भी एक्सेप्ट करिए, हम भी एक्सेप्ट करें, तभी तो होगा ना, काम चलेगा। पर ये वो बट आप और हम हम में ये आदमी। इम्पोज नहीं कर सकते आपके ऊपर कि आप मुझे एक्सेप्ट करें, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ये बात कि एक्सेप्टेंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एंड द पीपल हु हैव लर्न सम फ्रॉम समवेयर और द अदर, अगर हमारी पेरेंटिंग में वो होगा तो शायद हम वो भी सीख जाएंगे। क्या बात है, एक्सेप्टेंस के बिना न लव आएगा, न रिस्पेक्ट आएगी, न कनेक्शन बिल्टअप हो पाएगा। आई गेस द बेसिक रिक्विजिट फॉर एनी हेल्दी रिलेशन, बी इट अ पेरेंट चाइल्ड और अ हस्बैंड वाइफ और एनी रिलेशन फॉर दैट मैटर, acceptance is a very very primary requisite. Very beautifully you said that. I'll go back to the book again. आपने एक तानसेन का स्टोरी बड़ा ब्यूटीफुली और बहुत ही सरल शब्दों में इस बुक के अंदर इंटीग्रेट किया है, बिकॉज हमारा जो भारतीय विरासत है उसमें कई सारे ऐसे पावरफुल एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर शब्दों की शक्ति को बताया गया है। इस बुक में बहुत सारे, मैंने इसीलिए आई वांटेड टू, वन ऑफ द, ऐसे सोच के पर्पस नहीं था, बट ये ज़रूर दिल में था कहीं कि हमारे पास जो आपने कहा विरासत है, इतनी रिच विरासत है, बट उसके बारे में ना हम बात करते हैं, ना हम ट्रेन करते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर हम बच्चों को शुरू से गीता को कंपलसरी कर देते हैं, इट्स डेफिनेटली नॉन रिलीजियस, गीता को कंपलसरी कर देते तो जो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता, जो उनमें अपने मन को जीतने की पावर आती, जो उनके कर्मों के प्रति उनका कमिटमेंट होता,
वो एक अलग ही लेवल का होता, फिर वो हमारे भारतीय एक अलग ही लेवल के होते। सो आप कुछ पूछ रहे थे, मैं भूल गई वो क्वेश्चन। ये फिर आपने बड़ी खूबसूरती से मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे दिया, जहाँ विरासत की हाँ, बात तानसेन की हो बात रही कर है। रहे थे। पर मैं एक चीज और जो कहना चाहता हूँ, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक वो विरासत हमारे पास पहुंचेगी नहीं। पहुंचेगी नहीं। तो मैं आपकी इस विरासत को एक बार आपकी परमिशन बिल्कुल, से बिल्कुल। यूज करना चाहता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। शुरू और का फर्स्ट चैप्टर ही है कि डू वर्ड्स हैव एनर्जी, जिसमें हमने बहुत सारे मंत्रों पे जो रिसर्च हुए हैं और जो बहुत सारी हम बातें बोलते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है, वो सब बता रहा है। मैं पर चाहूंगा मैम, अगर आप तानसेन वाला ये जो चैप्टर है, इसको एक क्विक नोट पे हमारी ऑडियंस को पढ़ के सुना नो दें? नो आई नहीं, गेस ओके। आपके शब्दों में सुनना, ओके, पढ़ने का ओके। सौभाग्य तो बहुत लोगों को मिलेगा, आपको सुनने का लिमिटेड लोगों को मिलने वाला है। एक्चुअली जो तानसेन वाला है एपिसोड, वो बता रहा है शब्द, रिदम एंड योर एटीट्यूड एंड इंटेंशन, इन सब का समावेश जब होता है, एनीथिंग कैन हैपन। सो तानसेन जो थे वो राजा अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, और सारे जितने बाकी लोग थे, कोर्टियर्स थे, वो उनसे बहुत जलते थे। तो उनको पता था कि तानसेन दीपक राग गाते हैं। दीपक राग, तो रिदम भी है उसमें, शब्द भी हैं उसमें, और जब वो दीपक राग गाते हैं तो रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लैंप जलने लगते हैं, लपटें निकलने लगती हैं। तो वो चाह रहे थे कि ये ऐसा राग गाएं और खुद ही जल जाएं। तो उन्होंने अकबर को सजेस्ट किया कि इन्होंने आपको कभी सुनाया नहीं भाई, इनसे कहिए कि आपको दीपक राग सुनाए। अकबर ने ऑर्डर कर दिया उनको। अब तानसेन समझ गए, सबके इंटेंशन भी समझ गए, उनको समझ में आ गया कि इसके पीछे पर्पस क्या है। तो उन्होंने अकबर से 1 महीने का टाइम मांगा, और फिर उन्होंने अपनी डॉटर को मेघ मल्हार राग सिखाया टू न्यूट्रलाइज टू दैट। न्यूट्रलाइज दैट ओह टेम्परेचर। ब्यूटीफुल। और आप देखिए कितनी पावर है फिर, है ना? तो उन्होंने फिर जब वो 1 महीने बाद दीपक राग गाना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, लैंप जलने लगे, लपटें निकलने लगीं, तो तुरंत वो इंडिकेशन था कि भाई किस समय तुम मेघ मल्हार गाओगी। तो तुरंत उनकी डॉटर ने फिर वो मेघ मल्हार राग गाया, जिससे पानी बरसने लगा, ठंडक आ गई और वो टेम्परेचर कम होने लगा। तो वो कितनी खूबसूरत बात है, जिस पावर को हम लोग समझते नहीं हैं। हमारे स्वरों की पावर है, नाड़ी की पावर है, जिससे हम अपने को ठंडा भी कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, बोल के गर्म कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं, मतलब हम सुन के शब्दों से, अपनी सांसों से अपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हील हील करने कर की सकते हैं। और कैपेसिटी हम रख अपने सकते हैं। शब्द जो हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि आपके बॉडी में जो जो आप एक्सटर्नल मेडिसिन्स लेते हैं, वो सारी मेडिसिन्स आपकी बॉडी भी क्रिएट करती है। और उसका एक बहुत आसान तरीका है शब्दों से उन मेडिसिन्स को क्रिएट करना, बिकॉज शब्द आर इमेजिनेशन ऑल्सो विजुअलाइजेशन, एंड देर इज नो डिफरेंस बिटवीन विजुअलाइजेशन एंड रियलिटी। विजुअलाइजेशन एंड रियलिटी में कोई अंतर नहीं है। अगर अभी आप चाहें, अगर मैं आपसे कह दूँ वो देखिए सांप आ गया, तो आप कांप जाएंगे, डर जाएंगे, उछल जाएंगे। कॉकरोच देख के, कॉकरोच का देखना तो छोड़िए, नाम सुन के लोग उछल जाते हैं। सो ये रिएक्शन क्या है? और जब आप उछलते हैं तो केवल आप उछलते नहीं हैं, आपको एकदम घबराहट होने लगती है, आपकी पसीने बॉडी आने रिएक्ट लगते करती हैं, है, डर पसीने जाते हैं। आने जी लगते। जी जी। बटरफ्लाइज इन द स्टमक इज अ वेरी कॉमन सेइंग। तो आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो रही है ना। सो फिजियोलॉजी कैसे चेंज हो रही है? द मोमेंट यू थिंक समथिंग, द फिजियोलॉजी हैज चेंज्ड। इंटरव्यू के पहले हार्ट पैल्पिटेशन होने लगते हैं, बहुतों को एग्जाम के पहले बीपी बढ़ जाता है, पैनिक अटैक पड़ने लगते हैं। सो व्हाट इज ऑल दिस? वी नो दैट देयर इज अ big connection between your imagination and your physiology. So there is no difference between reality and imagination. So you create your reality through imagination, So whatever you would like to create in real, start through imagining words, the same through through words. words. क्या बात That's है। why word is world. That's why word is world. यहाँ पर आपने कुछ बहुत powerful statements पेज नंबर 48 पे दिए हुए हैं। I would want you to randomly pick up any of those 2 or 3 statements for my audience here. Maybe Okay, these are anonymous. some of the Yes, quotes. Yes, the yes. quotes which Viktor Frankl. I will not let the cruelty. Viktor Frankl was in Nazi concentration camp. Worst condition ever anybody can think. I will not let the cruelty around me extinguish the spark of human dignity within. Amitabh Bachchan. Everyone looks ordinary, but everyone has an extraordinary talent.
I'll prove that setbacks are just stepping stones. This is anonymous. दशरथ मांझी इज द माउंटेन मैन जिस पे वो बनी है, जिसने 20 साल में पहाड़ों के बीच अकेले रास्ता क्रिएट कर दिया. सो ही इज राइटिंग कैसे किया, क्रिएट किया, उसके कौन से वर्ड्स थे, बिकॉज जब तक वो लगातार अपने मन में वो बात नहीं बोल रहा होगा, वो 20 साल तक अकेले पहाड़ नहीं काट सकता. आजकल 10 मिनट मोटिवेशन बनाए रखना बड़ा बड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल है. और 20 साल उस मोटिवेशन को हाँ, बनाए रखना छोटी उसकी बात नहीं है. वाइफ की डेथ हो गई थी बिकॉज वाइफ कुड नॉट रीच द हॉस्पिटल इन टाइम. वहाँ पे रास्ता अवेलेबल नहीं था. सो ही सेड, आई विल नॉट लेट एनी पर्सन, एनी वुमन डाई फॉर नॉट रीचिंग द हॉस्पिटल. वो संकल्प, दैट इज एक तो पॉजिटिव रिएक्शन है. एंगर हो सकता था, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो सकता था, अदर डिस्ट्रक्शन हो सकता था. इंस्टेड ऑफ दैट उसने एक संकल्प लिया कि मेरी वाइफ मर गई, बट आई विल नॉट लेट एनी पर्सन डाई फॉर नॉट रीचिंग द हॉस्पिटल. 20 साल मेहनत की, उसने पहाड़ में रास्ता बना दिया. So there are several Thank you. sentences. Thank you so much, ma'am, for bringing. I'm sure everyone Huh. should definitely go and check out this book because this is amazing. And not just one or two side of ours can be developed with this. But यहाँ पे लिखा है happier, healthier and successful you. Yeah. अगर ये 3 areas हम conquer करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता happiness ऐसी चीज है जो हम में से कोई नहीं चाहता. Health भी आपके अभी अल्टीमेट एम ही हैप्पीनेस है. आप चाहे जॉब कर लो, चाहे बच्चे पैदा कर लो, चाहे शादी कर लो, चाहे पैसे कमा लो, अल्टीमेट आपका गोल क्या है? हेल्थ एंड हैप्पीनेस. बट ये हेल्थ एंड हैप्पीनेस के एम को बनाने के बावजूद ये हेल्थ एंड हैप्पीनेस एक फार फेच्ड आइडिया लगता है इन हमें मेजॉरिटी ऑफ ऐसा द लगता है कि हम ये कॉन्टेक्स्ट. अचीव नहीं कर सकते. अगेन द थॉट व्हिच वी गिव टू आवर हेड एंड हार्ट. एग्जैक्टली, वी आर सजेस्टिंग. बहुत सारे लोग डरते हैं, अब पता नहीं ओल्ड एज में क्या होगा, हम डिसेबल ना हो जाए, कोई मेरी हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, कोई मुझे सहारा देगा कि नहीं देगा. सो ये भी तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना. एंड दिस इज व्हाट वी वुड क्रिएट फॉर आवरसेल्फ मे बी इन टाइम्स टू कम. ऐसे कौन से बेसिक पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो खुद को, बिकॉज आप सेल्फ टॉक के एक्सपर्ट हैं, खुद से वो कौन सी ऐसी 4-5-6 बातें हमें रोज करनी चाहिए जिससे हम अपने आप को मोर हैप्पियर, मोर हेल्थियर एंड मोर सक्सेसफुल वर्जन की तरफ पुश कर सकें? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. क्योंकि हर सिचुएशन में, हर उसमें अलग अलग वर्ड्स है. बट समथिंग लाइक आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ I love and accept myself एग्जैक्टली एज आई एम exactly as I am. is one of the most beautiful sentence. क्या बात है. मैं अपने आप को प्यार करता हूँ और मैं अपने आप को मैं जैसा हूँ वैसा वैसा स्वीकार स्वीकार कर, करता हूँ. जैसा हूँ हम्म. वैसा स्वीकार करती हूँ. सो आई थिंक ये एक सेंटेंस अगर आप कहना शुरू कर दें, फिर अगर आप सुबह उठते हैं मिरर में देखें अपने को, लव योर सेल्फ, हग योर सेल्फ, एंड यू ऑल्सो आस्क फ्यू पॉजिटिव क्वेश्चंस. फॉर एग्जाम्पल वो आपके किसी भी गोल से रिलेटेड हो सकते हैं, बट एक कुछ कॉमन हो सकता है. हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ हैप्पियर टुडे? हाउ कैन आई मेक माई फैमिली हैप्पियर टुडे, healthier today? How can I create positivity in my life or others' life? जो भी आपका एम हो उससे रिलेटेड, बट योर क्वेश्चंस हैव टू बी. इसमें एक बहुत खूबसूरत चैप्टर है और मुझे लगता है बहुत पावरफुल चैप्टर है, पॉजिटिव इंक्वायरी का. ज़्यादातर हाँ, ज़्यादातर आप जब प्रश्न पूछते हैं, तो अगर आप देखिए कैसे प्रश्न पूछते हैं. अगर आप फिसल के गिर गए तो आप पूछेंगे क्यों गिर गया, और अभी 21वीं क्यों सदी फिसल में गया. सबसे महत्वपूर्ण स्किल जो है मुझे लगता है वो इंटरोगेशन स्किल है. आस्किंग क्वेश्चन. राइट. हम जब एआई के पास भी जाते हैं सबसे पहले हमें सही सवाल पूछना आना चाहिए, जवाब सारे मौजूद हैं जो वहां से हमें मिल सकते हैं. पर यहाँ पर आपने एक बड़ी सुंदर तरीके से लैंग्वेज ऑफ नेगेटिव इंक्वायरी एंड लैंग्वेज ऑफ पॉजिटिव इंक्वायरी पे बात की है. बिफोर वी गो टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन टुडे, आई वुड लाइक टू हैव वन लास्ट सेगमेंट. जनरली हमारे एपिसोड का एक लास्ट सेगमेंट होता है शब्दों की शक्ति, पर आज हमारा पूरा एपिसोड ही शब्दों की शक्ति पे डिवोटेड है, क्योंकि कैसे शक्तिशाली व्यक्तित्व के साथ हम बैठे हैं जिन्होंने शब्दों की साधना अपने पूरे लाइफ एंड करियर में की है. सो आई गेस दैट्स समथिंग व्हिच इज रियली ब्यूटीफुल. सो मैम, मेरा एक लास्ट मोड जैसे कहना चाहिए, ऐसे कौन से 3 स्टेटमेंट जो हर पेरेंट को बच्चे का दिन शुरू करते समय और बच्चे का दिन कंप्लीट करते समय
before we say a final good night to the child by the end of the day, and when we start our day with the child, हमें वो कौन से तीन ऐसे स्टेटमेंट्स, वो तीन ऐसे शब्द या सेंटेंसेस हमारे लाइफस्टाइल में ऐड कर लेने चाहिए? सेरेना विलियम्स के जो फादर थे, वो हमेशा अपनी लड़कियों को क्या कहते थे? यू आर द चैंपियन, यू आर द चैंपियन, दे बिकेम द चैंपियन। They became the champion. इंस्टेड ऑफ सेइंग तुम तो खेल नहीं पाती हो, तुम बार-बार हार रही हो, बार-बार ये कर रही हो, दे आल्सो फेल्ड मेनी टाइम्स। So they said कि no, you are a champion, you are a champion. So start giving, again it will go into their subconscious mind, and they'll say I am champion. When you start say I am champion, you become a champion. तो पहले तो आपको ये बोलना है ना, तो एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को ये महसूस हो कि माई पेरेंट्स आर देयर फॉर माई सपोर्ट नो मैटर I'll lose what or win. mistake I do. Yeah. So I'm with you, You are a champion. I am with you. आई एम विद यू, यू आर अ चैंपियन। और जो भी आप चाहते हैं कि वो गोल अचीव करे, आई लव यू, I love you Unconditionally. unconditionally. I love you with all, I mean, we don't have to say with all your perfections, but it should mean, say, I love you exactly as you are. Don't compare your child, क्योंकि जैसे आपने compare किया, that means you are not loving your child exactly as the child is. You are जब तुम deciding the ऐसे बन versions. जाओगे, Right, तब मैं तुम्हें right, प्यार करूंगा, right, ये मैसेज दिया हमने। right. यू हैव टू स्टॉप गिविंग दिस मैसेज कि मेरा लव कंडीशनल है, तुम्हारे 90% आ जाएंगे तब मैं प्यार करूंगा, तब मैं तुमको गिफ्ट दूंगा। एंड ये तो कर्म की थ्योरी के भी विपरीत है। रीइंफोर्समेंट्स को, हमें प्राइजेस को कंबाइन करना, जो कि बहुत ज़्यादा हम करते हैं कि तुम 90% ले आओगे तब हम तुमको मोटरसाइकिल देंगे। जब तुम बहुत मेहनत से पढ़ोगे, I mean, you reinforce the child when the child is doing what the child should do or what you want the child to do, It's a beautiful message. instead of कि जब रिजल्ट आ जाए। Hmm. एक तरफ हम कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा मा फलेषु फलेषु कदेश, कदाचन। उसका मतलब ये नहीं है कि फल की चिंता मत करो। Hmm. उसका मतलब केवल ये है कि आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए और उसी पे आप फोकस कर सकते हैं। अगर आप जो है फल फल पे पे। फोकस करने लगेंगे तो आपका कर्म का फोकस खत्म हो जाएगा। जब कर्म का फोकस कम हो जाएगा तो आप फिर तो आपके फल क्या आएगा, वी डोंट नो। और फल चाहे जो आए, अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, आपका इंटेंशन सही है, आपके 50% आते हैं, 60% आते हैं, हाउ डज इट मैटर? So true. आप अगर उसमें फर्स्ट आ जाते हैं रेस में या सेकंड आते हैं रेस में, हाउ डज इट मैटर? That's so आप अपनी पूरी मेहनत momentary. लगा के Yes, करोगे yes. तो फिर आज नहीं तो कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, एंड यू आर हैप्पी विद इन, क्या बात है। एंड यू गेट रीइंफोर्स फॉर दैट। तो एक मैसेज मैं पेरेंट्स को देना चाहूंगी कि रीइंफोर्समेंट शुड नॉट बी ऑन द रिजल्ट, रीइंफोर्समेंट शुड बी ऑन द कर्म, Process. on the Not process, the product. on the product, on the intention, Yes. on the Very intention. nice. When we would try and refine the process by focusing more on the efforts in spite Yes. of just the results. and we would stop That's why I rewarding the said कि results only. गीता की इस तरह की बहुत सारी एनालिसिस अगर That should be करना शुरू integrated कर from the दें, very beginning. इंटीग्रेटेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और आज हर बच्चे को माँ बाप को गीता के क्लासेस करवानी चाहिए, अच्छे टीचर से। यहाँ पर हमारे एजुकेशन वर्ल्ड के लिए प्रोफेसर अग्रवाल ने बहुत सारे न्यू हेडवेज दे दिए हैं। स्पाउस बनने के पहले ट्रेन योरसेल्फ प्रॉपर्ली, पेरेंट बनने के पहले ट्रेन योरसेल्फ प्रॉपर्ली। Yeah, don't be accidental parent or spouse. So true. Be a trained, oriented, ready to accept. Correct. Prepare yourself before getting into that Yes. zone of your life. Last बाकी but जोन्स not के the लिए हम least. करते हैं Yes, प्राइमरी, yes. आई मीन एकदम नर्सरी की School के पहले भी एंट्रेंस अब के लिए preschool. नहीं नर्सरी एंट्रेंस के लिए माँ बाप कितनी तैयारी कराते हैं बच्चे को, जी। पर शादी के पहले तैयारी केवल लहंगे और कपड़े और ड्रेस और स्टेज की होती है। जी नहीं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई मस्ट से। एंड शायद इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप्स बड़े फ्रेजाइल हो रहे हैं, वहां से स्टेबिलिटी बिकॉज कहीं पीपल कहीं आर चेंजिंग, विमेन आर चेंजिंग, और एक तरफ चेंज ज़्यादा है, दूसरी तरफ चेंज एंड एक्सेप्टेंस बहुत कम है। सो इंस्टेड ऑफ कि वो लड़कियां काम करने लगी हैं इसलिए रिलेशनशिप ब्रेक हो रही है, नो, दैट्स नॉट द रीज़न। द रीज़न इज दैट गर्ल्स आर मूविंग फॉरवर्ड, दे ऑल्सो वॉन्ट टू हैव देयर राइट्स ऑफ लिविंग देयर लाइफ with full potential, with fun, enjoyment, which the other sex is not ready to impart with.
सो दैट इज द रीजन। और वो अगर प्रिपरेशन हो जाए तो वो इट विल बिकम ब्यूटीफुल। छोटे छोटे इश्यूज में ही प्रॉब्लम होती है, बड़े इश्यूज में यूजुअली नहीं। और मुझे लग रहा है कि ट्रेनिंग का सबसे बड़ा लेसन हमको यहाँ अभी ऑलरेडी मिल गया है कि एक्सेप्टेंस के लिए अपने आप को तैयार करें। And जब द मोर यू एक्सेप्ट द लेस यू वुड हैव कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर कनेक्शंस। नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स द फाइनल सेगमेंट ऑफ दिस डे। और यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ नेगेटिव इंक्वायरी एंड लैंग्वेज ऑफ पॉजिटिव इंक्वायरी, यहाँ पर प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन दोनों दिया हो। अब वो बहुत सुंदर सा एक टेबल मैंने बनाया है, तो डू यू वांट मी टू रीड दैट? आई वुड लव टू हैव ओके यू। ओके। यू नो, जैसे हम ज़्यादातर आई स्टार्टेड ऑल्सो कि जब कुछ भी होता है, जैसे मान लीजिए आपका बेटा आया रिजल्ट कार्ड लेके, एक में उसके 40 नंबर है, एक में 70 है, एक में 80 हैं, 40 70 80, तो आपका फोकस कहाँ जाएगा? 40 पे। एंड व्हाट विल बी योर क्वेश्चन? इतने कम क्यों आए? इतने कम क्यों आए? इसका मतलब आप वो प्रोसेस जानना चाहते हैं कि कम क्यों आए। डू यू वांट टू रिपीट दैट प्रोसेस? नो। देन व्हाट शुड बी द क्वेश्चन? कि इसको बेटर कैसे किया जा सकता है? Can you bring better marks in this? Yes. And what will you do Mm. to get better marks in this subject? पहले तो your starting should be appreciation of 70 80 marks, but you will not do. पर आज के ज़माने में बहुत पेरेंट गिव अप मोड में है कि इसके ऊपर ये सब करने का मैम कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो बातें बता रही हैं वो बड़ी अच्छी हैं, बट ये बच्चे आजकल के सारे बड़े ढीठ हाँ, तो हैं। फिर वो ले जाते हैं काउंसलर के पास, वो कहते हैं इसको ठीक कर दो। अरे भाई, पहले मैं आपको ठोक पीट के ठीक करूंगी तब मैं बच्चे को ठीक करूंगी। और आप ठुकने के लिए तैयार नहीं है। So don't expect the change in the child then. So let me read it. जी please. So कुछ जनरल मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, इसमें जेनेरिक एग्जाम्पल्स हैं विच यू कैन अप्लाई एंड फॉर Day-to-day एनीथिंग life, दैट यू आर yeah. डूइंग. What is the problem? Instead of asking what is the problem, that means your focus goes on the problem, and the moment your focus goes on the problem, your emotions become negative, you feel helpless. So instead of asking this question, this is a very very common question. मेरी कंपनी नीचे क्यों जा रही है, क्या क्या इसमें नहीं हो रहा है? And most of the times, since we don't have time right now, most of the times the problem cannot lead to solution. Identification of problem cannot lead to solution, Okay. right? So आपको वो पूछना चाहिए क्वेश्चन जिससे आपकी होप बढ़े, मोटिवेशन हो, और आप समाधान की दिशा में समाधान सोच की पाएं। दिशा में जाएं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा कहता है कि मुझे मैथ्स पसंद ही नहीं है। कॉमन तो स्टेटमेंट। हाँ, कॉमन है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे डर लगता है, मुझे अच्छी नहीं लगती, या मैं इसमें वीक हूँ। तो आप ये सोचें कि नहीं, मैं इसको स्ट्रॉन्ग कर दूं मैथ्स में। हो सकता है उसका एप्टीट्यूड ना हो सकता है उसका एप्टीट्यूड संगीत किसी के और प्रति है, सब्जेक्ट में हो, आर्ट्स राइट। के प्रति है, या फिजिक्स के प्रति है, बट मैथ्स के प्रति नहीं नहीं है। है, हाँ। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट इज द प्रॉब्लम, यू आस्क वेयर आर यू इंटरेस्टेड, what makes you happier, what do you want to study. So इसका मैंने alternative जो दिया है, what is the problem, what is good thing working in your life. For example, whenever a couple comes to my clinic, I never ask what is the problem between you. अगर हमने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो अंतहीन है लिस्ट लंबी है और हम उसको ठीक नहीं कर नहीं कर सकते, पाएंगे। है ना, ठीक नहीं कर सकते. सो व्हाट आई थिंक आई व्हाट इज वर्किंग बिटवीन यू, व्हाट इज स्टिल लेफ्ट, वो उसको कौन से और build up मोमेंट्स किया हैं, जा वो सकता कौन है। से मोमेंट्स हैं जब आपने टुगेदरनेस एंजॉय की, उसको पूछ के फिर उस पे आप बिल्डअप करिए, है ना. what is the best solution to this problem. Instead of asking what is the problem, you ask how can we solve this issue. And problem word को avoid करिए. How can we solve this issue? What is the issue? How can we solve this issue? उसमें अपने आप issue तो आ ही गया, पर आपका solution, motivation, positivity, hope सब create भी हो गई. Absolutely. So the next one is, why did you fail? How did you pass last year? What should be done to succeed next time? Why is this person so mean? This is a negative inquiry question. When was this person decent with me? भाई आप उससे connected हैं तो कभी तो वो decent रहा होगा ना, नहीं तो connected ही नहीं रहते. So you ask this question, when was this person decent to me, or similar questions. Or how can I mend my relationship with this person? Is it meaningful to mend my relationship with this person or not? अगर आपको जवाब मिलता है नहीं तो फिर एफर्ट ही मत करो.
why am I not able to earn as much as I wanted? मेरा काम नहीं चल रहा, मैं फेल हो रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ, कैसे हो रहा हूँ? What steps can I take to increase my earning potential? Immediately you will start getting solutions, motivation, and action steps. So we say like we should not have a problem seeking attitude. We should have a solution seeking Solution attitude. seeking questions. Questions. Questions play a very important role in your entire life. So you have to learn. This is a skill. It's a skill which will come with practice. So अगर हम जो है ग्रूमिंग का कोर्स कराएंगे पेरेंट का और स्पाउस के लिए, तो मैं उनको ये पॉजिटिव इंक्वायरी पे ज़रूर ट्रेनिंग दूंगी. I'm sure. And that's must. दैट इज़ अ मस्ट कि कैसे आप अपने स्पाउस से किस तरह के क्वेश्चन पूछें, बच्चे से किस तरह से कम्युनिकेशन में क्या क्वेश्चंस पूछें. So instead of why am I not able to earn, what steps? Yes, this I have said. Why am I not getting what I deserve? What is wrong? तो wrong आता जाएगा. What actions can I take to align my efforts with the outcome I aspire to achieve? Another question: where is my health failing, lacking? How can I improve my health? Or where my, for example, let me give you my example. I have reversed my osteoporosis, which is very, very rare. I had spinal fracture, I had slip disc, and many other issues related to my spine. So instead of saying कि अरे मेरी कमर मेरे को इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं, मेरे को जॉइंट की प्रॉब्लम्स क्यों हैं, I started thanking my spine. मेरे को अभी भी आप सपोर्ट कर रहे हो, मैं खड़ी हूँ, आपकी वजह से खड़ी हूँ और सारे काम कर पा रही हूँ. आई स्टार्टेड थैंकिंग इट एंड स्टार्टेड फाइंडिंग आउट. फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ सेइंग मेरी किडनी फेल हो गई है या मेरी किडनी काम नहीं कर रही, अरे भाई लिवर तो काम कर रहा है ना. एंड किडनी को भी बोलो कि भाई तुमने इतने दिनों तक मेरा साथ दिया और अभी भी दोगी और दे रही हो. मैंने लगता है तुम्हें इग्नोर किया. प्लीज़ फॉरगिव मी दोज 4 सेंटेंसेस. आई एम सॉरी कि मैं तुमको इतना कर्ज कर रहा हूँ. प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर कर्सिंग यू. थैंक यू दैट यू आर वर्किंग एंड आई लव यू. आई लव यू. सो ये जो आप कह रहे थे ना 3-4 सेंटेंस हर ऑर्गन को दीजिए. आई लव यू, आई लव यू. और खासकर जो ऑर्गन खराब हो गया उसको और ज़्यादा दीजिए. फिर आप देखिए कैसे मैजिकल चेंजेस होते हैं. सो मेरे कौन-कौन से ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, मेरे अपने आपके हाथ ही कितने इम्पोर्टेंट हैं. तो यू थैंक योर हैंड, यू थैंक योर लेग्स, यू थैंक योर आईज, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी. और जो खराब है उसको और ज़्यादा. वेयर इज माई, अच्छा, in which subject is my child weak? Instead of asking that, ask in which subject is my child strong. So these are just some few examples. Beautiful, ma'am. Beautiful. Thank you so very much. And before we conclude, I just want, अगर आप कोई एक closing comment हमारे listeners के लिए यहाँ पर share करना चाहें, and then we'll conclude this episode. As the book is about Yes. psychology of self-talk, ये मुझे लगता है पूरी psychology का काफ़ी निचोड़ है इसमें. बहुत सारे, it's a practical self guide, And it's a very relatable and psychological anecdotes talk. में है, कहानियों के जी, माध्यम जी, से बताया जी. गया है और इसमें जर्नलिंग भी है. तो आप यदि अपनी सेल्फ टॉक के बारे में अवेयर होना चाहें, होना शुरू कर दें, क्योंकि ऑल द टाइम वी आर टॉकिंग टू आवरसेल्व्स. मोर देन 50% ऑफ वेकिंग टाइम, रात में भी हम अपने से बात कर रहे हैं, इंटेंशन भेज के सोइए, बट दिन में हाफ से ज़्यादा टाइम हम अपने से बात कर रहे होते हैं. तो आप लिखना शुरू कर दीजिए कि मैं क्या बात कर रही हूँ. स्टार्ट राइटिंग इन अ नोटबुक सो दैट यू बिकम अवेयर. और फिर उसमें इस किताब में भी दिए हुए हैं तरीके उसको चेंज करने के लिए. द मोमेंट यू चेंज योर सेल्फ टॉक, you will find a significant change in your emotions, in your feelings, in your thought process. क्योंकि बहुत सारे लोग आके कहते हैं मैम मुझे ओवर थिंकिंग बहुत. इट्स अ वेरी कॉमन बजवर्ड, ओवर थिंकिंग. बट वॉट इज ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग इज द सेंटेंसेज यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ. और वो 15 साल वाली पहले की हर्ट हम बार बार अपने शब्दों में जी रहे हैं.
सो वो 15 सालों मेरे पास जो बहुत सारे आते हैं क्लाइंट्स फॉर हिप्नोथेरेपी, काउंसलिंग। सो उनको मैं कहती हूँ मुझे लगता है सबको हिप्नोथेरेपी करानी चाहिए, सबको आना चाहिए विदाउट एनी स्टिग्मा, बिकॉज़ हमने बहुत कुछ अपने पास रखा हुआ है। जो क्लाइंट्स होते हैं वो पता चला कि वो अभी 40 साल के और 4 साल का कोई इश्यू निकला जब वो 4 साल के थे। जैसे ही उसको रिलीज़ किया वो 40 साल वाले इश्यू अपने आप ठीक हो सॉल्व होने शुरू। माइग्रेन एक सेशन में ठीक हो गया, शिवरिंग एक सेशन में ठीक हो जा रही है लोगों की, क्योंकि कोई डीप रूटेड इनर चाइल्ड है जिसको आपने बहुत कर्स किया है, जिसको आपने खुद रिजेक्ट किया है, इग्नोर किया है। जब उस इनर चाइल्ड को आप इंटीग्रेट करते हैं देन यू बिकम क्या बात है. Thank you so very much, ma'am, for adding a lots and lots of wisdom to this particular conversation. आपके इतने सारे अनुभवों को इतनी सरलता के साथ आपने हमारे साथ यहाँ पर आज साझा किया, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट की सारी प्रॉब्लम स्टार्टिंग फ्रॉम फूड, स्क्रीन एडिक्शन, नंबर कमाना, बात नहीं सुनना, उन सारी समस्याओं का समाधान कुछ शब्दों के साथ जीवन में आ सकता है. थैंक्स अ लॉट from the bottom of my Oh, heart. it's my pleasure कि I'm honored to be a part of Beyond Talks because I'm sure आपके माध्यम से हम लोगों की बातें थोड़ी दूर तक जा पाती हैं और यही हमारा पर्पस है, नथिंग एल्स. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you so much, everybody. Do like, share, and subscribe the channel and share this episode with somebody who is in need of it. Thank you.